Good morning, dear students. Today we are going to discuss about ethics in marketing, ethical behavior in marketing. What is marketing ethics? Very important question from your examination point of view. We have to understand the things in a proper way, and we have to give the justice to what the ethics says about the marketing. First, I will explain you what is ethics. Just a second. Yeah, ethical behavior in marketing. When we speak about the ethics in marketing, what it means, ethics in business. Ethic means what? Ethic is nothing but the difference between what is good and what is bad. Ethic is nothing but it is a difference between what is good and what is bad. Ethic is a single line between what is to be done and what is not to be done. Ethic is a single line between what is to be done and what is not to be done. Ethic is a common factor which explains us how things work in a given situation in a proper way with the right direction with the proper direction. So here we are going to understand about ethical behavior in a business. एथिकल बिहेवियर इन अ बिजनेस. एथिक हम लोग लाइफ में एवरीबडी मस्ट हैव अ प्रॉपर एथिक. एवरीबडी मस्ट हैव अ प्रॉपर बिहेवियरल पैटर्न. We have to understand the things in a proper way. Okay, so now ethical behavior. In this, we are going to study something related to the ethical behavior. According to the Jennifer Lombardo, MBA marketing, she is, you know, they are making the people wait for 3 hours for some work. Is it ethical? No, we should not make the people wait for 3 hours unnecessarily. अब सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, if you are making people wait for 3 hours, okay, if we are making people wait for 3 hours, for example there are 20 people who are waiting. अगर 20 लोग वेटिंग में है और उन लोगों को हम कहते हैं कि 3 घंटा आप लोग इंतज़ार करो, तो 20 लोगों का 3 घंटे के हिसाब से 60 आवर्स, 60 घंटे हम लोगों के वेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमें कोई भी अधिकार नहीं है, जिसका हमें कोई भी अधिकार नहीं है. बरोबर है. तो वी शुड नॉट मेक पीपल वेट for the long hour. The moral principle or values that generally govern an individual or group. What is business ethic? Or what is an ethical behavior? It is the moral principles, rules, regulations, procedures, or values that generally govern an individual or group. जो कोई भी इंडिविजुअल को गाइड करता है, गवर्न करता है, चलने के लिए रास्ता बताता है, कोई गलत रास्ते पे जाने नहीं देता है. ये सारी चीज़ों को वो जो संभाल के लेता है, इसी को कहा जाता है बिजनेस एथिक्स. जस्ट सेकेंड डियर स्टूडेंट्स.
Yeah, so the moral principle or values that generally govern an individual or a group of people is known as a business ethic. Okay, it's a basic rules and regulation, nothing else. So when we speaks about the ethic, it's a standard of behavior. It is a standard of behavior. कि कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म इन अ डिफरेंट सिचुएशन, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, स्टैंडर्ड, अ प्रॉपर सेटअप, एक कैसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल से बात कहना चाहता हूँ। एक एक वेडिंग फंक्शन में आप जाते हो, मैरिज में आप जाते हो, तभी आपका बिहेवियर कैसा रहता है, उस सिचुएशन को चेंज करते हैं। किसी के घर में कोई मिस हैप यानी कि कोई दुर्घटना हो गई है, तभी आपका बिहेवियर कैसा रहता है। ऑब्वियसली जब वेडिंग में जाते हो तब का आपका बिहेवियर, और किसी के घर में जब कोई हादसा हो गया है तब का आपका बिहेवियर में चेंज होगा कि नहीं। यही तो कहा जाता है कि तुम लोगों को सेंस है कि एथिक किसे कहते हैं। एथिक मतलब व्हाट टू डू इन अ डिफरेंट सिचुएशन, व्हाट टू डू इन अ गिवन सिचुएशन। ओके, कैसा बिहेव करना अलग अलग सिचुएशन में, इसी को कहा जाता है एथिक। हाउ टू परफॉर्म इन अ डिफरेंट सिचुएशन, क्या सही है क्या गलत है, कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें उन लोगों के साथ डील करना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज एथिक। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े हो, और एक ट्रैक बाजू में है, वहाँ पे आपका कोई पुराना दुश्मन चल रहा है, जिसके साथ आपकी एकदम जानी दुश्मनी है, बहुत ही पर्सनल दुश्मनी है। आपको हमेशा आपने चाहा है कि वो अब मेरे को दिखना भी नहीं चाहिए, मेरे सामने भी आना नहीं चाहिए। ऐसा पर्सन कोई सामने के ट्रैक में चल रहा है। ओके, और आप ट्रेन में खड़े हो दरवाजे के पास, सामने ट्रैक में आपने देखा कि वही पर्सन चल रहा है जिससे आपको पर्सनली यू आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल एंड यू वांट टू फाइट एनी टाइम whenever you see that person। और ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि वही ट्रैक पे पीछे की तरफ से एक ट्रेन आ रही है। क्या आ रहा है? ट्रेन आ रही है, वो ट्रैक पे है। आप यहाँ से देख रहे हो कि वो जो ट्रैक पे चल रहा है, वही ट्रैक पे पीछे से ट्रेन आ रही है, और आपने देखा कि अगर इसको बताया नहीं गया तो यहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। शायद उसको पता ही नहीं है कि वो कितना डेंजर में है। वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। यहाँ पे आप ट्रेन में खड़े हो, सामने वाले ट्रैक के ऊपर ट्रेन खड़ी है, वहाँ पे आप उसके दरवाजे पे खड़े हो, आपका ध्यान उस पे गया, आपका ध्यान ट्रेन पे गया, उस पे ट्रेन पे, ट्रेन पे उस पे। आपके अंदर से एक आवाज निकली, ए भाई जल्दी से हट जा, पीछे ट्रेन आ रही है, फास्ट, मूव योर सैल, फटाफट से हट जाओ। दोस्तों, उसने भी देखा कि तू, पहले तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये मेरे को क्या बोलने जा रहा है, मेरा दुश्मन, क्योंकि तू उसको दुश्मन मानता है, वो भी तुझे दुश्मन मानता है। सो ही और शी whoever इट विल बी, उसने देखा, उसके ट्रेन को देख के इमीडिएटली पहले अपने आप को उस जगह से हटा के सेफ साइड में चला गया। बराबर है। अब मेरे को एक बात बता, तू तो चाहता था कि उसका बुरा हो, तू तो चाहता था कि उसको तकलीफ हो, तू तो चाहता था कि इसका लाइफ को डैमेज हो, सब कुछ तो चाहता था। लेकिन जब सच में उसकी मृत्यु तेरे सामने दिखी, उस समय पे जब तूने देखा कि ये इसको अगर मैंने टाइम पे नहीं हटाया तो इसका डेथ हो सकता है, इमीडिएटली तेरे मन से आवाज, तेरे अंदर से आवाज आई, और उसको हटने के लिए तूने मजबूर किया। जब तूने उसको वहां से मूव करने के लिए मजबूर हुआ, वो तू नहीं बोल रहा था, तेरे अंदर बैठा हुआ तेरा एथिक बोल रहा था। हम सब में एथिक रहता है दोस्तों। हम बोलने के लिए बोलते किसी का बुरा, लेकिन हम चाहते नहीं कि किसी का बुरा हो। हम बोलने के लिए बोल देते हैं, अरे इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। लेकिन हम जब सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो हमें समझ में आता है कि
कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी का लाइफ, किसी का डेथ, ये मजाक नहीं है। हम अगर हो सके तो किसी को बचा सकते हैं, किसी को मारना हमारे हाथ में नहीं है। और कोई ऐसे डैमेज हो रहा है, कोई ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर एथिक है या नहीं। बराबर। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, रिप्लाई मी, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव्स कि ये जो स्टोरी मैंने अभी बताया, तो वो जो बंदे ने उसको आवाज़ दिया कि भाई तू उधर से हट जा वरना ट्रेन का हादसा हो जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, उसने सही किया या गलत किया? अगर आपको ऐसा लगता है सही किया तो यस सर लिखो, और ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मरने देना चाहिए तो नो सर लिखो। चलो, यस और नो में आंसर दो फटाफट। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे जितने लोगों ने आंसर दिया है यस, समझ जाना आपके अंदर अपना एथिक जिंदा है। और जिसको मन नहीं कर रहा है आंसर देने का, थोड़ा सोच रहा है कि मर जाता तो मर जाता, अपने को क्या है। बाकी के लोगों के अंदर अभी भी उसका एथिक जिंदा है। ओके, सो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में, इज नॉन एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। एक बंदा कहता है मैं बोल रहा हूँ वो राइट है, दूसरा बंदा कहता है यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग, तू गलत बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है। एक बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ वो राइट है, दूसरा बोल रहा है तू गलत बोल रहा है। अब यहाँ पे हमेशा लाइफ में ऐसा होता है। आप देखो ना, कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से भी बात करते होंगे, तभी भी ये सिचुएशन आती है। हमेशा आप बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ राइट है, तो पेरेंट्स आपको बोलते हैं नो 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 नो, आई थिंक सो यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, तो लॉट कुछ तो गलती कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग बट एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल। एक स्टूडेंट बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला, कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में तकलीफ देने वाला एक एग्जांपल है। एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट था जो हमेशा टीचर्स को परेशान करता था, उसको लेक्चर लेने देता था, बहुत बार उसके पेरेंट को बुलाया, सब कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर भी उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। हमेशा उसको एक ही काम करना है, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस करना है, परेशान करना है, दूसरों को डिस्टर्ब करना है, दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना है, हमेशा ऐसा। उसके लिए प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई टीचर्स की, जो जो उसके क्लास में पढ़ाते थे वो सब टीचर्स को बुलाया, और वो टीचर्स को पूछा कि क्या किया जाए इसका भी। आई थिंक सो ही इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट एंड disturbing to the overall environment, not cooperating, not supporting, not listening, not following, क्या किया जाए? उसमें से एक टीचर ने ऐसा बोला, सर ऐसे बच्चों को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। ओके, प्रिंसिपल ने नोट किया। दूसरा टीचर बोलता है आई थिंक सो हमें उसको फेल कर देना चाहिए, एक आध साल फेल होगा, 2 साल फेल होगा तो उसको समझेगा, तो वो प्रिंसिपल ने नोट किया। तीसरा एक टीचर बोला सर हमें उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए या उसको फेल कर देना चाहिए। ये दोनों पनिशमेंट तो है, लेकिन ये दोनों पनिशमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है कि वो जो स्टूडेंट है उसका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, एकेडमिक लॉस हो रहा है। फिर प्रिंसिपल ने सवाल पूछा, चलो ठीक है, ही इज़ नॉट गुड इन बिहेवियर, डिसिप्लिन, मस्ती करता है, ये सब होने के बावजूद भी मुझे ये सवाल का जवाब दो कि हाउ ही इज़ इन स्टडी। सब्जेक्ट वाइज पूछा गया, भाई आपके सब्जेक्ट में कैसे है? मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाई करता है।
दूसरा बोलता है हाँ एटलीस्ट आउट ऑफ 100 ही स्कोर्स और नियर बाय 60-65 इन ऑल द सब्जेक्ट इज 60 to 70%. इट मीन्स ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, अगर हमने उसको स्कूल से निकाल दिया या तो उसको फेल किया, जानबूझ के उसको डिटेन किया, तो ये हो सकता है कि वो अपना लेवल जो है डिस्टर्ब करने का उसको दुगना कर दे और भी बढ़ा दे। कुछ भी पनिशमेंट दो लाइफ में किसी को भी, लेकिन उसका एकेडमिक लॉस करो वैसा कभी नहीं करो। स्टूडेंट के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। कुछ भी पनिशमेंट दे दो उसको कोई भी पनिशमेंट दो, उसको क्लास से 5 दिन दूर रखो, घर वाले को बुला के उसके लिखित दे दो, उसके पेरेंट को बोलो तुम पूरा दिन भर रुको, देखो तुम्हारा बच्चा क्या करता है, बाहर ही बैठे रहो, कुछ भी करेगा तो तुम उसको घर लेके जाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको फेल करना ये बहुत ही गलत सोच है। फेल तो करना ही नहीं। स्कूल इज नॉट देयर टू pass or fail the student just by their behavior. School is there to judge the student by the academic performance of the student. And academic performance student is good and maybe होगा, तो फेल करना ये कोई पनिशमेंट नहीं होती। इट्स अ रॉन्ग पनिशमेंट। आई नेवर एवर एक्सेप्ट इन द लाइफ कि कोई पढ़ाई ना करे उसके लिए उसको, मतलब जो क्लास में बिहेव अच्छा ना करे उसके लिए उसको फेल कर दिया। नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एथिकली सोचो, कुछ ऐसा ना करो कि जिससे उसका नुकसान हो। हमने बहुत सारे ऐसे लोग जिंदगी में देखे हैं जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करके रहते हैं, अपना छोटा सा गोल प्रूव करने के लिए दुनिया का नुकसान करते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली स्पीकिंग वी शुड नॉट हैपन। क्यों करना है हमें? क्यों किसी और के ऊपर हमें प्रेशराइज करना है? क्यों किसी और को हमें डिस्टर्ब करना है? पनिशमेंट दो, संबंध तोड़ दो, लेकिन उसको इंडस्ट्री से खत्म कर दो। इट शुड नॉट बी अ गुड थिंग। मैं आप लोगों को ये सब स्टोरी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करो। आपके अंदर जो एथिक है ना, उसको मैं जागृत कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ उसको। क्योंकि इफ यू वांट टू बी अ गुड लॉयर, इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर, इफ यू वांट टू बी अ गुड बैंकर, फाइनेंशियल decision maker, or anything you want to be in the life, first of all you need to be a good human being. अच्छा डॉक्टर, अच्छा लॉयर, अच्छा मैनेजर तब बन पाएगा जब एक अच्छा इंसान बन पाएगा। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपका एथिक जिंदा होना जरूरी है। अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ गुड मैन एंड अ बैड मैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड इज एन एथिकल बिहेवियर। जिद मत करो, जिद मत करो, लॉन्ग टर्म का सोचो कि आपका एक काम करने से कितने लोगों को तकलीफ हो सकती है। आप एक डिसीजन लोगे उससे कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी यू हैव टू थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर इंडिविजुअल। तुम सिर्फ अपना देखोगे तो कैसे चलेगा। एक कॉरपोरेट का एग्जांपल लेना चाहूँ। बहुत बार देखा हमने, कॉरपोरेट का है। कंपनी जब डूबने वाली होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को फंसाती है, भाग जाती है। पैसे डूबे तो किसके डूबे? शेयर होल्डर। इतने सारे लोगों ने तुम पे विश्वास करके तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। अभी तक
हाँ, कम बैक टू द थिंग। अपना फायदा देखने के लिए जब लोग दूसरों का नुकसान करके भाग जाते हैं, इससे बड़ा अनएथिकल काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा एथिकल अनएथिकल बिहेवियर क्या हो सकता है? So dear student, try to understand what you have to do and how you have to do in a given situation. पैसा कमाने के चक्कर में just if you can do, yeah, somebody has written like corruption. Somebody has given the example of corruption. Yes, corruption is one of the example of kind of unethical behavior. अपना काम कराने के लिए लोगों को पैसा खिला के उसके अंदर अपना फायदा देखना is a purely unethical behavior. Is a purely unethical behavior which we have to avoid, which we need to understand. Okay, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अभी थोड़ा और when we speaks about don't do it, somebody makes you wait for 3 hours, you must tell them don't do it. You cannot make people wait for the long hour for any unethical purpose. So when we speaks about the unethical behavior, ethics is unwritten rules. तीन चीजें इधर important है. There are three things which is important. Protect employee rights. प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज के अधिकार को नुकसान ना पहुंचना चाहिए. क्या मांगता है एम्प्लॉय? टाइम पे पेमेंट मांगते हैं, सही समय पे मुझे मेरा पेमेंट दे दो, और कुछ भी नहीं मांगता है. तो प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज राइट्स. उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दो, उसको सही तरीके से इम्पोर्टेंस दो, समय समय पे उसको जो मिलना चाहिए वो बेनिफिट दो, और कुछ भी उसकी अपेक्षा नहीं होती है, और उसकी कुछ भी अपेक्षा नहीं होती है. नथिंग, नॉट. सो प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय राइट्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना, एनवायरमेंट को बचा के रखना. एज अ कंपनी you should not spoil the environment. On the contrary, you should save the environment. You must believe that. You must keep the environment good, healthy. बीच में एक एग्जांपल आया था, कोको कोला कंपनी की वजह से कितना तकलीफ हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा था, कितनी जगह पे रिवर में वो पोल्यूशन फैल रहा था, कितनी जगह पे वो प्रॉब्लम बढ़ रहा था. समझ में आ रहा है आपको? तो आपका पैसा, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आप एनवायरनमेंट को तकलीफ नहीं दे सकते. यू कैन नॉट स्पॉइल द एनवायरनमेंट. यू मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इन अ प्रॉपर वे. बिकॉज ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये कुदरत आपने नहीं निर्माण की. ध्यान से सुनो, ये कुदरत का निर्माण आपने नहीं किया है. यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ द नेचर. तो आपको इसको खत्म करने का अधिकार भी नहीं है. समझ आ रहा है? जब इस सृष्टि का निर्माण आपने नहीं किया है, जब इस एनवायरनमेंट का निर्माण आपने नहीं किया है, जब इस नेचर को आपने नहीं बनाया है, तो उसको खत्म करने का अधिकार तुझे किसने दिया? ये पॉल्यूशन फैलाना, एनवायरनमेंट को नुकसान करना, तेरा बिजनेस कमाने के लिए, तेरे पैसे कमाने के चक्कर में तू इस एनवायरनमेंट को खराब करेगा, विच इज डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस. You should not
spoil the environment at any cost. You have to take care, utmost care about saving the environment. एज ए बिजनेसमैन तुझे बिजनेस में ये ध्यान देना जरूरी है कि तेरे वजह से कोई एनवायरमेंट हजार्ड नहीं होता। मैंने बोला तीन चीजें हमें पढ़नी है, पहला था एम्प्लॉय राइट, दूसरा था एनवायरमेंट, एंड थर्ड वन इज कस्टमर। तीसरा हमें किसको देखना है, तो वो कौन है, हमारे कस्टमर। यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर कस्टमर। कस्टमर्स आर द पे मास्टर्स। हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। हम क्यों इतना इन्वेस्ट करके नए बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं? our only intention is to give our customer best services. That is the ultimate logic we have. So protect the employee rights, protect the environment, and protect the customer. अगर ये तीन चीजों को तू तेरे बिजनेस में करने के टाइम पे ध्यान देता है, मतलब समझ जाना कि तू एथिक फॉलो करता है, यू आर फॉलोइंग द एथिक्स। अदरवाइज ये तीनों एरिया में आपने देखा रहेगा, लॉकडाउन के सिचुएशन की मैं बात करता हूँ। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कंपनी ने क्या किया है लोगों के साथ, पेमेंट देना बंद कर दिया, नो पेमेंट। और अगर आप लोगों को या आपने अभी अभी कोई कंपनी ज्वाइन की थी और अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो पहला कंपनी से निकलने का नंबर तेरा होगा। पेमेंट नहीं देना, पेमेंट कट करके देना, नुकसान करके देना। अब हम दोनों तरफ से सोचें, एम्प्लॉयज को पगार नहीं मिल रहा है लेकिन कंपनी नहीं दे पा रही है, कंपनी भी नहीं दे पा रही है, तो वो भी राइट है, बिजनेस ही नहीं है। एथिकल बात कर रहे हैं हम लोग कि पगार देना चाहिए, बट कहाँ से देगा? अरे कुछ तो रास्ता निकालो, 50% तो दो, 50%, 60%, 75%, एकदम ही नहीं देना। लेकिन यहाँ बेचारा एम्प्लॉय को घर में 2 टाइम खाना तो खिलाना पड़ता है, खुद को भी और अपने फैमिली को भी। जरा सोचो वो पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे अरेंज करेगा, बोलो। What exactly I mean to say to you people is that यहाँ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जब हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एथिक कहाँ गया? Who will take care of the ethical behavior? पहला ही रूल इधर पे टूट गया एथिक का, प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय राइट्स। एम्प्लॉय के अधिकार को टिका के रखना। अरे एम्प्लॉय बच्चा किधर है? क्या राइट मिलेगा उसको, कौन से अधिकार मिलेंगे, कैसे मिलेगा, बोलो? नो चांस। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कितनी सारी ऐसी कंपनी है जिसके मशीनरीज के वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, जिसके मशीनरीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और जिस कंपनी के वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। आपने देखा होगा ईवीएस में। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे नियर टू घाटकोपर, चेंबूर एंड ऑल। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, द मोस्ट पोल्यूटेड एरिया इन मुंबई इज चेंबूर। नो वाई? देयर आर टू
setup. Number one, BARC, Baba Atomic Research Center. Atomic reasons, atoms, radiations. Or number two big problem is the RCF, Chemical Fertilizers Company, पूरा chemical related. Try to understand. इतना पोल्यूशन है इस जगह पे कि हम घाटकोपर के अंदर रहने वाले लोग कभी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. एकादा कोई प्लांट, एकादा कोई प्रॉब्लम में लीकेज या कुछ हो गया, समझ जाना, we all will be in a big trouble. बिकॉज पहले चपट में जो आता है सराउंडिंग एरिया, कुर्ला, घाटकोपर, विद्या विहार, अप टू विक्रोली, मानखुर्द, गोवंडी, चुनपट्टी, दैट एरिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ गया फिर एथिक. Who is taking care of the ethic? Who is taking care? Nobody. And finally, अपना customer. How to maintain the customer? How to maintain the good relation with the customer? फंसाएगा तो दूसरी बार कभी नहीं आएगा. You can fool the customer once, not always. एथिक उधर बहुत ज़्यादा लागू पड़ता है. मिलावट करके देना, इधर उधर का कोई भी गुड्स पहुंचाना, कोई भी गलत चीज़ें देना, अननेसेसरीली उसको ट्रबल देना, कोई फायदा नहीं है. तो क्यों बिजनेस कर रहा है वो, क्यों क्यों तेरे से प्रोडक्ट खरीद रहा है, तेरे पे विश्वास करके प्रोडक्ट खरीद रहा है. और तू क्या कर रहा है विश्वास का, कुछ थोड़े ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में तो कस्टमर को इतना सारा प्रॉब्लम ले देता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है. हिसाब समझो दोस्तों. So there are three things in ethics which is also known as unwritten rules. ये तीन चीज तो तुझे कंपनी चलाने के टाइम पे करनी है. मैं इतना डिटेल में तेरे को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज जो है वो तुझे एग्जाम में प्रॉपरली लिखनी है. बस इतना करना है कि बिजनेस में पैसा कमाने के चक्कर में किसी से भी नुकसान करना नहीं है. एम्प्लॉय का भी नहीं, एनवायरमेंट का भी नहीं, कस्टमर का भी नहीं. You should not do the unethical practice with these people to make good money, just to make a good money. The next thing you have to understand is business ethics determine companies' everyday conduct. Business ethics determine companies' everyday conduct. रोज कंपनी कैसे बिहेव करने वाली है, एवरीडे लाइफ में कंपनी कैसे डील करने वाली है. बहुत सारी कंपनियों के ऊपर अभी भी केस चालू है क्योंकि उन्होंने अनएथिकल काम किया है. जब जब अनएथिकल काम होता है वहाँ वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर लगानी पड़ती है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है. Government has to take utmost care about that situation. So, determines companies everyday conduct. कंपनी का रोज गरोज का लाइफ में कंपनी क्या करती है उसको बिजनेस एथिक कहा जाए. इसके बाद के सेशन में हम लोग और डिटेल में जाने वाले कौन से जगह पे एथिकल प्रॉब्लम होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट, अनएथिकल एडवर्टाइजिंग. प्रोडक्ट बेचने के लिए जब एडवर्टाइज आती है तो कस्टमर को फंसाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं लोग. इसके लिए हम डिस्कस करेंगे. ज्वाइन इमीडिएटली फॉर द नेक्स्ट सेशन विदाउट फेल. थैंक यू वेरी मच.